Hello everyone, myself Mrs. Hemlata Sahu, Assistant Professor of Chemistry, Government Leaders PG College Raipur. Today I am going to deliver a lecture on drug design, and it is a part of MSc 4th semester, paper 1st, unit 3rd. Before knowing about drug, first we should know what is drug. The term drug, it is derived from a French word draw. It means a dry herb. मतलब parts of the plants, leaves, stem and bark. In ancient days, people used to parts of plants as for treatment of diseases or cure any disease or for treatment of any ailment. So people used to call anything which cure any disease that is a drug. पर ये ड्रग का सही डेफिनेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर ड्रग को अपन ये माने कि वो डिसीज़ को क्योर करता है तो वही ड्रग है, तो वो क्या होगा उसका जिसको अपन हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज़ करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू WHO in 1966, a drug is a substance that causes a change in an organism फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी when consumed. कोई भी ड्रग जो कंज्यूम करने पर ह्यूमन की फिजियोलॉजी या उसकी साइकोलॉजी में चेंज करता है वो सभी ड्रग के श्रेणी में आते हैं. If you see the history of drug, then it is as old as man himself. From the dawn of civilization, people used to cure any disease by parts of plants or anything extracted from animals or from minerals. Drugs we know in today's world, it were already existing, it were prevalent in ancient times. Even the Babylonians, Egyptian, Greek, Romans, Chinese and Indians, they had their own materia medica. It means उनका खुद का अपना हर्बल और केमिकल डिस्क्रिप्शन होता था, उसके यूज़ और उसके डोसेस के बारे में उनको जानकारी होती थी. Now we will see development of new drug. Development of new drug means bringing a novel drug from bench to bedside, means from laboratory to shelf. The process of developing a new drug that effectively targets a specific weakness in a cell. This process involves specific preclinical treatment, testing, and it is also followed by trials in humans to determine its efficacy. Now we will see the stages of development of drug. अगर हम इसके stages को देखते हैं तो it is classified, it is divided into 4 stages. First is that is the early drug discovery, second preclinical research, third clinical research, and fourth is the regulatory review, approval and post-marketing safety surveillance. First we will see early drug discovery. Early drug discovery, it is also classified into 4 stages. First stage is target identification, validation. Second is hit identification and validation. Third is hit to lead and lead optimization. And fourth is candidate selection. Now we will see what is target identification and validation. तो एक सही बायोलॉजिकल टारगेट को आइडेंटिफाई करना मतलब दैट इज ड्रगेबल. ड्रगेबल का मतलब होता है anything whether it is a protein or nucleic acid that can be used as a drug, means and its activity means its behavior or its function can be changed or modulated by a therapeutic method, whether it be a small molecule or any biological protein or nucleic acid. But अपन को टारगेट यूज़ करने से पहले जानना होता है कि उसको कोई ड्रग वो अच्छा टारगेट कैसा है. व्हाट मेक्स ए गुड टारगेट. अच्छा टारगेट होने के लिए ज़रूरी है कि ये एक अच्छा कंफर्म रोल प्ले करे पैथोलॉजी ऑफ ए डिसीज़ एंड आर ए डिसीज़ मॉडिफाइंग. इसके एक्सप्रेशंस थ्रू आउट द बॉडी एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, इसके 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल हो
और इसका ये असेबल हो वेदर बाय हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग मेथड। इट शुड हैव ए डेफिनेट टॉक्सिसिटी प्रोफाइल और इसके पोटेंशियल या जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं उसको हम प्रेडिक्ट कर सकें ताकि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट से बच सकें। इसके बाद जब अपन टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका जो वैलिडेशन है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो दो इम्पोर्टेंट स्टेप है, पहला है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब इट कैन बी रिप्रोड्यूस, मतलब इट कैन बी सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस, मतलब इसको दोबारा बनाया जा सके तभी ये आगे अपन इसको एज ए ड्रग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इसमें अपन वेरिएशन ला सकें ताकि इसको अच्छे ड्रग के रूप में उपयोग कर सकें। इस पर रिक्वायरमेंट्स जो अपने बॉडी में किसी डिसीज़ को क्योर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरा कर सकें। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हिट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो हिट क्या होता है? व्हाट इज हिट? हिट इज़ ए कंपाउंड दैट इंटरेक्ट्स विद द टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। जिस टारगेट पे अपन इंटरेस्टेड है उससे वो हिट इंटरेक्ट करता है। इसके लिए कई स्क्रीनिंग अप्रोचेस हैं जिसके द्वारा अपन हिट को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, फिनोटाइपिक स्क्रीनिंग, वर्चुअल स्क्रीनिंग, फ्रैगमेंट बेस्ड स्क्रीनिंग एंड स्ट्रक्चर बेस्ड स्क्रीनिंग। इसके बाद जो अपना अगला पार्ट होता है लेड ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज़ लेड ऑप्टिमाइजेशन? ये इसका अगला पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक ड्रग के डिज़ाइन करने में। पार्ट 2 के रूप में अपन इसको देखेंगे। तो लीड कंपाउंड क्या होता है? लीड वो कंपाउंड है, इससे अपन को कंफ्यूज नहीं करना है। लीड के कंपाउंड्स को अपन लीड कंपाउंड के ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। एनी कोई भी ऐसा केमिकल एंटिटी जिसको अपन एक नए ड्रग के रूप में डेवलप कर सकें बाय डेवलपिंग या बाय ऑप्टिमाइजिंग इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट एंड मिनिमाइजिंग इट्स साइड इफेक्ट्स, वो सारे लीड कंपाउंड में आते हैं। मतलब लीड कंपाउंड are typically used as starting point in drug design to give a new drug. लीड कंपाउंड, लेकिन बात आती है लीड कंपाउंड में हैव मैनी अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अपन उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं जो अपन चाहते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं जो अपन नहीं चाहते, जैसे कि इट में हैव हाई टॉक्सिसिटी, अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी करे जो ड्रग के ट्रीटमेंट में, जो किसी डिसीज़ के ट्रीटमेंट में नहीं आता है। इसकी इंसॉल्युबिलिटी, अगर ये इंसॉल्युबल नहीं होगा तो इसको अपन उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगला है इसका मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम। तो वाई लीड मॉडिफिकेशन इज़ नेसेसरी? तो लीड मॉडिफिकेशन अपन इसीलिए करते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी को अपन मिनिमाइज़ कर सकें, इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो अपन को रिक्वायर्ड नहीं है उसको अपन मॉडिफाई कर सकें, इसके मेटाबॉलिज्म को अपन चेंज कर सकें और इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो अपन लीड मॉडिफिकेशन में देखते हैं, पहले तो ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिव पार्ट। जो लीड मॉडिफिकेशन में जो इसका एक्टिव पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं फार्माकोफोर। यही वो पार्ट है जो अपने रिसेप्टर से इंटरैक्ट करके जो अपन को जो एक्टिविटी चाहिए उसको रिस्पॉन्स देता है। सेकेंड पार्ट इसमें जो होता है दैट इज़ ऑक्सोफोर। तो ये जो होता है ये इट मे इंटरफियर विद द बाइंडिंग, ये बाइंडिंग को रोक भी सकता है कई, और इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, परंतु फिर भी इसकी आवश्यकता होती है। तो लीड मॉडिफिकेशन इज डन टू इम्प्रूव द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। पहले तो अपन आइडेंटिफाई करते हैं फार्माकोफोर को, उसके बाद अपन करते हैं फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं लीड मॉडिफिकेशन के लिए। SAR जो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। उसके बाद है स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन टू इंक्रीज पोटेंसी एंड थेरेप्यूटिक इंडेक्स। उसके बाद है स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन टू इंक्रीज ओरल बायो अवेलेबिलिटी, इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाकर भी अपन इसका लीड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये मॉर्फिन का एक एग्जांपल मैंने लिखा है। मॉर्फिन में आप देख रहे हैं जो इसमें बोल्ड पोर्शन है वो इसका क्या है, फार्माकोफोर है, और जो लाइट पोर्शन जो दिख रहा है दैट इज़ अ ऑक्सोफोर। अपन देखते हैं ऑक्सोफोर क्या रोल्स प्ले कर सकता है। तो पहला ये है
कि इट होल्ड द फार्मेकोफोरिक ग्रुप इन देयर प्लेस, उसको एक डेफिनेट जो उसके प्लेस में रखता, होल्ड करके रखता है। और इंटरफियर विद द बॉन्डिंग टू द रिसेप्टर, इट मे बी अनफेवरेबल, रिसेप्टर से उसकी बाइंडिंग को रोक भी सकता है। इट ऑक्यूपाई एन इनर्ट स्पेस एंड ये उस ड्रग की फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट कर सकते, जैसे कि ये लेवोफिनॉल बनाया गया है, इसमें इसका जो रिमूवल ऑफ द डाइहाइड्रोक्विनोन ऑक्सीजन जो कि अफेक्ट करता है इसके ओवरऑल बायोएक्टिव कन्फर्मेशन को। इसी तरीके से इसमें जो दूसरा अपन लीड मॉडिफिकेशन से अपन पेंटाजोसिन, और इसी तरीके से अगला अपन कंपाउंड बनाया है पेंटाजोसिन है, ये इसकी एडिक्शन लाइबिलिटी को कम करता है। इसी प्रकार से एनाल्जेसिक है, इसकी भी क्या है जो एक्टिविटी है मॉर्फिन की तुलना में ज़्यादा होती है। लीड मॉडिफिकेशन भी अपन और कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन से। फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप को अपन चेंज करके इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे इसमें अपन दिख रहा है कि ये कंपाउंड है दैट इज़ अ कार्बोब्यूटामाइड एंड सेकंड कंपाउंड इज टॉलब्यूटामाइड। Carbobutamide, it is having NH2 or amino group as a functional group, and tolbutamide is having methyl group. Carbobutamide, it has both the properties antibacterial as well as anti-diabetic, whereas tolbutamide is having anti-diabetic activity relationship. स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब है जो ड्रग का जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर है और उसकी एक्टिविटी के बीच में एनालिसिस, उसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच का जो रिलेशन है उसको अपन देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे यार जो ड्रग्स हैं बेसिकली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट आर स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक एंड सेकंड आर स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक। जो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक होते हैं वो जनरली क्या जो रिसेप्टर या जो एंजाइम्स होते हैं उसके स्पेसिफिक साइट पर एक्ट करते हैं और इनकी जो एक्टिविटी और पोटेंसी बहुत हाई होती है और बहुत स्मॉल केमिकल चेंज के द्वारा के लिए ये ससेप्टेबल होते हैं। ज़्यादातर जो अपने मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैं ये इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो है स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, ये इस प्रकार के जो ड्रग होते हैं ये कोई स्पेसिफिक साइट पर एक्ट नहीं करते और इनकी पोटेंसी लो होती है। इसके एग्जांपल्स हैं सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स। जब तक चेन लेंथ 9 कार्बन एटम होता है ये टॉलरेबल है और यहीं तक इसकी जो लाइपोफिलिसिटी और वाटर सोलिबिलिटी हाईएस्ट होती, मैक्सिमम होती। जब चेन लेंथ 9 से ज़्यादा बढ़ता है तो इसकी सॉल्बिलिटी कम होने लगती है और जहाँ इसकी सॉल्बिलिटी कम होगी इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगी। इसी प्रकार से अपन लीड मॉडिफिकेशन, चेन ब्रांचिंग और रिंग चेन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है जब चेन ब्रांचिंग होती है तो ये उसकी पोटेंसी को कम करती है और जो ब्रांच्ड एल्किल चेन है उस जो होते हैं वो कम लाइपोफिलिक होते हैं स्ट्रेट एल्किल चेन के द्वारा। और चेन ब्रांचिंग जो है इसके रिसेप्टर से कंबाइन होने को भी इंटरफेयर करती है। लीड मॉडिफिकेशन के लिए है जो दूसरा है बायो आइसोस्टेरिज्म। इसका मतलब होता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट लीड मॉडिफिकेशन अप्रोच है। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसकी केमिकल और फिजिकल मतलब प्रॉपर्टीज़ जो होती है लगभग सेम होती है और ब्रॉडली सिमिलर होते हैं इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर। इसका व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो आइसोस्टेरिज्म, एक मतलब ये इनकी टॉक्सिसिटी को कम करता है और लीड की एक्टिविटी को मॉडिफाई करता है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज करता है और इसकी पोटेंसी को भी बढ़ाता है। बेसिकली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज द क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म, second is the non-classical bioassociates. So in this these are the examples of classical and bioassociates: univalent CH3NH2OH chloro. In the same way divalent methylene group and imido group, these are the examples. These are the examples of the non-classical bioassociates. Now lead modification जो होता है
कि बायोएबिलिटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो है उसकी लाइपोफिलिसिटी, आयोनाइजेशन, उसकी फिजिको केमिकल स्टेबिलिटी, बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, मतलब उसका इफेक्ट ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स और उसका फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। लीड मॉडिफिकेशन को जानने के लिए सबसे पहले एक हेंश नाम के साइंटिस्ट ने उसने इसकी लाइपोफिलिसिटी को मेज़र करने के लिए एक पार्टीशन कोफिशिएंट को विच इज़ अ मेजर ऑफ सॉल्विटी ऑफ कंपाउंड इन ऑक्टेनॉल वर्सेस वाटर. दिस इज द फार्मूला. P is equal to compound in octanol, compound in aqueous solution is multiplied with 1 minus alpha. Here alpha is the ionization constant. This is the example of lead modification in which यूरिकोस-यूरिक इफेक्ट ऑफ फिनाइलब्यूटाजोन एंड सल्फिन पैराजोन. इस तरीके से जो सल्फिन पैराजोन है उसकी जो एक्टिविटी, उसकी जो पोटेंसी है, इट इज़ 20 times more than phenylbutazone. The references are used for the question. Now we will see candidate selection, preclinical, clinical, regulatory review, post marketing safety. जो इसके जो डिज़ायर्ड फंक्शनल रिस्पॉन्स दिखाए और इसकी जो पर्याप्त इसकी बायोएबिलिटी और बायोडिस्ट्रीब्यूशन हो, इसका डेफिनेट टॉक्सिसिटी प्रोफाइल हो और इसकी मैन्युफैक्चरिंग सुटेबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट में अपन को जब इसको लार्ज स्केल पे बनाना होता है तो उसको कास्ट इफेक्टिवनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. प्री क्लिनिकल रिसर्च में होता है कि ड्रग जो है, ड्रग को it is important information about a drug candidate's efficacy and safety before it is tested in human subject. इसमें के लिए वो इन विट्रो और इन विवो मॉडल्स दोनों उपयोगी होते हैं ताकि, और इसके लिए कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी होती हैं जैसे कि FDA, MHRA. FDA जो है USA में, MHRA यूरोप में है, कि बिफोर मतलब क्लिनिकल टेस्टिंग से पहले इसको इन अथॉरिटीज़ से होकर गुजरना होता है. ये बेसिकली देखते हैं कि व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी, व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग, इट इज़ पोटेंट बट इट इज़ सेफ. दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट. नाउ क्लिनिकल रिसर्च ये भी कई फेज़ में होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3. फेज़ 1 में लगभग पार्टिसिपेंट 20 to 100 होते हैं एंड दिस कैन आइदर बी हेल्दी पीपल और ऐसे पीपल भी हो सकते हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन उस डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं जिसके लिए अपन ड्रग रिसर्च करना चाह रहे हैं. ये इसका जो स्टडी लेंथ के कुछ सेवरल मंथ्स का हो सकता है. इसके बेसिक पर्पस होता है कि अपन इसके डोजेस के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद उसके पोटेंसी के बारे में जानें. उसके बाद फेज़ 2 होता है. फेज़ 2 में कई लगभग 300 तक के लोगों पे ये प्रयोग किया जाता है और ऐसे लोगों पे ये किया जाता है जो लगभग इसी डिसीज़ से सफ़र कर रहे हों. इसका स्टडी लेंथ कई सेवरल मंथ टू 2 ईयर, लगभग 2 साल तक होता है और पर्पस इसका होता है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है उसके बारे में भी जानना और इसकी अगर कोई इसकी पोटेंसी को और डेवलप करना, डोजेस में और इस पर सुधार करना. और थर्ड स्टेज जो फेज़ है वो लगभग 300 से 3000 तक होता है. ऐसे पे किया जाता है कि जो ऑलरेडी इस पीपल से, इस डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं और इसका स्टडी लेंथ लगभग 4 ईयर हो सकता है. और इस पर क्या होता है कि ये ड्रग की एफिकेसी होती है, उसकी कोई एडवर्स रिएक्शंस तो नहीं है. मतलब जो फेज़ 1 फेज़ 2 में छूट गया है अगर कोई अपन को रिसर्च करते समय, तो वो इस दौरान सर्च किया जाता है कि कहीं कोई इसके साइड इफ़ेक्ट ह्यूमन बीइंग में तो नहीं है जिसके कारण इसको प्रॉब्लम हो. तो ये क्लिनिकल रिसर्च है. उसके बाद जब क्लिनिकल टेस्टिंग के बाद इस ड्रग को गुजरना होता है रेगुलेटरी रिव्यू, अप्रूवल एंड पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी सर्वेलेंस. मतलब इसके अंतर्गत होता है कि अपन जानना चाहते हैं कि द ड्रग इज़ सेफ एंड इफेक्टिव, क्योंकि जिसके लिए अपन इसको डेवलप किए हैं, इसका थेरेपेटिक बेनिफिट क्या है, इसकी लेबलिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं, जिस पर्पज़ से अपन इसको बनाए हैं. दूसरा ये है कि इसकी ड्रग की क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं. ये कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जैसे FDA, EFPIA, EMA. हर एक कंट्री का अपना बहुत से रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होते हैं जो ये चेक मार्केट में आने से पहले उस ड्रग को पहले चेक करती है वेदर इट इज़ सेफ
फॉर ह्यूमन बीइंग और नॉट, उसके बाद ही ये अवेलेबल होता है। अगर अपन शॉर्ट में देखें तो ये इसके ड्रग डेवलपमेंट की ये स्टेजेस है कि पहले टारगेट आइडेंटिफिकेशन वैलिडेशन, उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद लीड ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद प्री क्लिनिकल, फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट जिसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 से ओवर हो जाता है, और लास्ट में फिर ये मार्केट अप्रूवल के बाद लोगों तक उपलब्ध हो पाता है। थैंक यू।